John respected Chief Justice Sri Sushil Kumar Verma, Sub Police Inspector, the Vicar General and Education Director of Patna Art Justice, Father James George, our school manager, Father Sebastian Kalupura, our dear fathers, sisters, friends, dear parents and all my dear students. आज के इस पहला खेल उत्सव में मैं सिस्टर कांता हमारे स्कूल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। On behalf of Plain School Fatwa, I feel truly honored to welcome you to the first day utsav of our school. I have great pleasure in presenting to you the annual report of Plain School Fatwa for the academic year 2024 and 25. Plain School Fatwa is the fourth branch of Crane Memorial Higher Secondary School, Gaya. Our school was started on 23rd March 2023 with 104 students. Academic year 2024 and 25. The total number of students 210. The Crane School focuses on teachers and students, cursive handwriting and its formation. In lower kindergarten, it is introduced and taught step by step with much patience and commitment. Our teachers are trained in Gaya, Sheikh Hati or in Jahanabad. Teachers' activities, teachers prepare lesson plan, teaching aids, outdoor game. Every month is held different competitions. Once in a month on Saturday by Grace Day. Every Saturday we have physical training. Teachers take turn and conduct it differently. Morning assembly is conducted every day with different themes, evoking God's blessing for the day. It is said that you must practice like you never won and perform like you have never lost. Co-curricular and extracurricular activities. There are an essential part of the life of an educational institution as they strengthen the classroom learning as well as develop the personality of the child and harness the in-depth potential of the student. Want to tell few lines about my learning at Crane School, Fatwa. I love to come to school every day. I enjoy studying different subjects in the class. Proud privilege to have a guest of honor, Sri Sunil Kumar Verma sir, who always dream big, act big and believe in big. सफलता के लिए हर किसी को एक प्रेरणा की जरूरत होती है। सफलता के लिए हर किसी को एक प्रेरणा की जरूरत होती है। इसलिए हमें किसी और की नहीं, इसलिए हमें
किसी और की नहीं, बस आपकी जरूरत होता है। So, with a big round of applause, please welcome our chief guest of honor to share a few words of wisdom with our students and with us. के डायरेक्टर साहब एवं सभी शिक्षकगण और उपस्थित सभी पेरेंट्स, बच्चे के माता पिता, सभी को मेरा जय हिंद। सबसे पहले मैं बच्चे के माता को प्रणाम हूँ, पिता को, इसलिए कि माता ही सबसे फर्स्ट गुरु होता है, उसके बाद ही पिता है और शिक्षक जो उसके बाद होते हैं। लेकिन माता जो है जब तक स्कूल नहीं भेजेंगी तो बच्चा का संस्कार और बनेगा नहीं, डिसिप्लिन नहीं जानेंगे। और शिक्षा ऐसा चीज है जो हर एक चीज बदल सकता है और शिक्षा से सब हर एक चीज हासिल किया जा सकता है। With lots of petals, it is always seen facing the sun. Its seeds are crushed to make oil, which we use for our cooking. Sunflower. चले, लगता है इस राज्य में प्रकृति का पूरा आशीर्वाद पाया है। जिधर देखो दूर दूर तक हरियाली इस राज्य में छाया है। जहाँ भी होगी चाय की बात, वहाँ होगा इस राज्य का नाम। बिहू डांस असम का एक पारंपरिक नृत्य है जो बिहू त्योहार में किया जाता है। यह नृत्य असम की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहू डांस अपनी अनोखी और आकर्षक मुद्राओं के लिए जाना जाता है, जो नृत्य को एक विशिष्ट और आकर्षक रूप प्रदान करती है। My mother, brother, sisters, my father and वो बचपन के शोर कई इस्तेमाल से दिमाग कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह।
बर्बादी कर दी है, सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो। या छोटे, सबको एक ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? वो चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो चीज बड़ी है मस्त। को जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? इस सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना ही किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? कहानी जो दिल को छू जाए, कहानी जो दिल को छू जाए, हर मन को एक सीख दे जाए। आओ देखें इस मंच पर वो कला, आओ देखें इस मंच पर वो कला जो हर दिल को जोड़े और सोच बदल जाए। Witness the heartwarming and kindness presented by our talented students. On the outskirts of the city, there was a tree which stood tall and green. It had long, thick branches. It had uncountable bright green leaves, blew restlessly with the wind. Birds could come from faraway places to sit on its branches and chirp their songs. It was a beautiful and happy tree. The tree shared a very special bond with a small boy from a nearby town. The boy could come every day to play with the tree after his school. Bob could eat the apple from the tree and play hide and go seek with it. They talked for hours and hours. The boy shared every dream. His ideas, his plans for the future. His thought and his everyday happy at school. The boy loved the tree very much and the tree was happy. But time went by, the boy grew older and the tree was alone. Then one day the
the boy came to the tree, and the tree said, Come, my child, come, my beloved boy, come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apple and play in my shade and be happy. I am too big to climb and play. I want to buy and have fun. I want some money. Can you give me? I have no money. I have only leaves and apples. My dear boy, take my apples and sell them in the market. Then you will have money and you will be happy. And so the boy climbed up the tree and gathered apples and carried them to market, and the tree was happy. But the boy stayed away for a long time. And then one day boy came back again. Tree was happy to welcome boy. Come, my child, come climb up my trunk and swing from my branches and be happy. I am too busy to climb. I want a house to keep me safe. I want a wife and I want children. So I need a house. Can you give me a house? I have no house, my child. The forest is my house, but you may cut off my branches and build a house. Then you will be happy. And so the boy cut off the branches of the tree and carried it away to build his house, and the tree was delighted. But the boy stayed away for a long time. After a long time, boy came back. The tree was so excited she could hardly speak. Tree whispered, Come, my child, come and play with me. I am too old and sad to play. Can you give me a bone? My child, cut down my trunk and make a boat. Then you can sail away and be happy. But not really. And after a long time, the boy came back again. Tree was happy to welcome boy. I am sorry, my child. I have nothing left to give you. My apples are gone. My teeth are too big for apples. My branches are gone. You cannot sing on them. I am too old to swing on branches.
Truck is where you cannot climb. I am tired to climb. I am sorry. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. I don't eat very much. Now just a quiet place to sit and rest. I am very tired. Well, an old stump is very good for sitting and resting. Come, my child, come sit down and rest. अभिभावकगण, हम सभी नए स्कूल के बच्चे आपके प्यार, ममता, परवाह एवं सहयोग के शुक्रगुजार हैं। Our loving parents, we are indebted for your love, care and support. आप हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। स्कूल की आवृत्ति से आपका प्यार आभारी है। Your love is unconditional. आप हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत हैं। You encourage us. Your blessing will provide us success in our life. Thank you. थोड़ा मुस्कुरा के तालियां बजा दीजिए। Your performance of the Giving Tree was truly heartwarming and making a positive impact in the society. आप सभी बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। आपका नाटक बहुत ही अद्भुत था। हमें आप पर सदैव गर्व रहेगा। कि माता पिता भगवान ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, आपकी पहचान है। इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सुशील कुमार वर्मा जी, पहले सचिव पद सदस्य, प्रधानाध्यापिका सिस्टर कांता, लयोला स्कूल कर्नौल के सचिव फादर जोस, प्राचार्य फादर रसीद, सिस्टर लोग, ब्रदर प्रदीप, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, इस विद्यालय के पेरेंट्स। रिपोर्ट से हम लोगों को पता चला कि इस विद्यालय में करीब 200 बच्चे हैं। मुझे लगता है कि सारे के सारे बच्चे मंच पर भी आ चुके हैं या तो आएंगे। इसी कारण से न केवल बच्चों का जीवन में, लेकिन बच्चों का जो गार्डियन है उनका जीवन में भी आज का शाम एक उत्सव का शाम है। इसलिए इस प्रोग्राम को भी नाम दिया गया प्रेम उत्सव। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ हमें शिक्षा भी प्रदान किया, चाहे सोशल मीडिया के बारे में हो या पर्यावरण के बारे में। आपने आपके माता पिता के साथ जो संबंध है, प्रेम का संबंध, वो अटूट है, ये भी आपने दर्शाया। आप लोगों का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ मैं देता हूँ। जो शिक्षक ने इन बच्चों को तैयार किए, छोटे छोटे बच्चों को तैयार किए, आप लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं।
जो गीत सुना गया और जो पोस्टर तैयार किए गए, उनका कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन, सबके सब प्रशंसा के योग्य है। अगर कोई भी विद्यालय जो क्लास 1 तक है, हमारा इस विद्यालय क्लास 1 तक है, इस तरह का कार्यक्रम अगर प्रस्तुत करते हैं तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आगे जाकर ये लोग इस तरह का प्रोग्राम हम लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है जो इनको तैयार करते हैं। विद्यालय प्रबंधन आप लोगों का परिश्रम 100% आज रंग लाएंगे। इस शाम के लिए पुनः मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए जो आमंत्रण मुझे मिला उसके लिए भी मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मुझसे सुनने के लिए नहीं बल्कि बच्चों का कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं। मैं आप गार्डियन से एक बात कहता हूँ, बचपन में आप जो आपके बच्चों के लिए करते हैं वही शाश्वत है। जब तक आपका बच्चा जीवित है या उनकी आने वाली पीढ़ी जीवित है, तब तक आपने जो अपने बच्चों के लिए किया वो याद किया जाए, ना कि मरते समय आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के। इसलिए बचपन में बच्चों को जो चाहिए कीजिए, उनको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। इसलिए जहाँ भी आपको अच्छा लगता है एक अच्छा विद्यालय में नामांकन कराइए, पढ़ाई में जो भी सहयोग चाहिए कीजिए। आपके बच्चों के जीवन में उभरते देखने में जो आनंद है उसको लीजिए। आप लोग ये भी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शुरुआती अध्ययन का 5 साल उसका फाउंडेशन करते हैं, नींव करते हैं। सभी लोग जानते हैं अगर नींव मजबूत है तो उस पर एक अच्छा मकान हम लोग खड़ा कर सकते हैं। अभी मात्र क्लास 1 तक आया, अभी 2 बाकी है, तभी 5 साल का होगा। अगर किसी कम उम्र में ये छोटे बच्चे इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, भरोसा भी है कि लोग अपने भावी जीवन में अपनी पढ़ाई में बिल्कुल आगे निकलेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। मैं बच्चों को बधाई के साथ साथ एक बात बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आप एक छोटा सा पौधा के समान हैं। हम लोग मौसम के अनुसार पौधा लगाते हैं, लेकिन हम इंसान को हर मौसम में जीना पड़ता है। हम गर्मी के कारण भाग नहीं सकते हैं, न ठंड के कारण भाग सकते हैं। हमको गर्मी में ठंड में ही जीना है। इसलिए विद्यालय में जो भी आपको सिखाया जाता है, कक्षा में हो या कक्षा के बाहर, पाठ्यक्रम में जो हो या पाठ्यक्रम से बाहर, ये सारी चीज आप लोगों को हर मौसम में जिंदा रहने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें मन लगाकर अध्ययन कीजिए। सबों का आशीर्वाद आपके साथ रहे। इस विद्यालय को पुनः ईश्वर की आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूँ। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। For some fun with delicious fruit, please welcome them with a big round of applause. छुए ऊंचाइयों को खुदा से फरमान करना और कुछ ना सही देने के लिए इनको और कुछ ना सही देने का सम्मान करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर देयर फंटास्टिक की समृद्ध संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राज्य की लोक संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। यह नृत्य बिहार में बहुत लोकप्रिय है और यह नृत्य अक्सर त्योहारों और अन्य समारोह में प्रदर्शित किया जाता है। यह नृत्य सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है।
Bihar folk dance provides a platform for culture exchange between different communities and regions, promoting cross-cultural understanding and appreciation. It is a powerful medium for expressing emotion and feelings, providing a way for people to come together, share their experience and celebrate their cultural heritage. It also gives us a sense of unity and social harmony. It also helps us connect with our community and enrich our cultures. Our talented performers have worked hard to bring you an unforgettable experience filled with the rhythms and melodies of Bihari traditional folk dance. तो आइए अपने तालियों से, जोरदार तालियों से नन्हे मुन्ने बच्चों को बिहारी डांस के लिए आमंत्रित करें। कैसे खेले जब सावन में कजरिया बदरिया तेरी आए नदी कैसे खेले मजे चे रची रची तिलक चढ़ावे होरा रची रची From class 1, आप अभिभावकगण से अनुरोध है कि जो समृद्धि गुप्ता रोबिन क्लास 1 की छात्रा के माता पिता हैं वो अब स्टेज पे आए। Everyone, it is a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this auspicious occasion of first Create Utsav. First of all, I start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion